Some people are absent and they want me to share the link, but this is a physical class. We only offer the online option when it's raining. Today it's not even raining. Well, anyway, because he wrote correct sentences, I'm just rewarding him. And the text I was reading, I'll continue. First of all, I would like to give you guys a little bit of feedback on what you have written in the group. Morning, sir. I just gave you the link today because you wrote some good sentences in the group. So it's like a reward. But other days, remember, when it's not raining, I will not share the link. Okay? Yes, sir. Rani Beta, you write. My uncle was the first man who took a government job, right? As a railway driver. As a railway driver. In railway driver, nahi beta, as a railway driver. In railways, yes. My uncle was the first man who took a government job in railways. Okay. My uncle was the first man who took a government job. My uncle was the first person in my family to get a government job as a railway driver. Very good. You wrote both the sentences and you understood what you were writing. My friend was the first person in her family to beta get went to Delhi or to go to Delhi. Delhi जाने वाली. To go. Think about it. To go to Delhi. Get मतलब get कोई जबरदस्ती वर्ड नहीं है कि get हर जगह रखना है. समझो बात को. My friend was the first person in her family who went to Delhi. Who? ऐसे ही लिखना था ना बेटा. Who went to Delhi, right? तो अब who went की जगह to go. Neil Armstrong became the first man on the moon. चलो ठीक है. First man to go on the moon भी लिख सकते थे. Neil Armstrong became the first man to go on the moon, to walk on the moon, because he was the first man who went onto the moon, who walked onto the moon, right? Yeah. बाकी ये सब सेंटेंस नहीं लिखना था ना. हेनरी फोर्ड बिकेम द फर्स्ट मैन, ये नहीं लिखना था तुम्हें. तुम ये थोड़ा सा बदमाशी कर गई. अपने लाइफ से लिखती कुछ भी उलट पुलट, है ना. इंदिरा गांधी पहली औरत बनी, पहली औरत थी जो प्रधानमंत्री बनी, है ना. ओके. Sam writes, APJ Abdul Kalam and Vikram Sarabhai were the first man. Beta, you're writing about two people and then you're writing the first man. You should write were the first men. They were the first men, plural. They were the first men to launch the rocket in India. To launch or to make? Launch a rocket मतलब होता है to fire a rocket, beta. To launch a rocket means to fire a rocket, okay? They were the first men to build, to make rockets in India, right? Rocket भारत में इन्हीं दोनों ने बनाया, okay? Louis Blériot was the first man to complete the journey or an air journey, beta. To complete an air journey, right? Neil Armstrong was the first man to land on the moon. Yes, very good. He landed on the moon, right? So he was the first man to land on the moon. Geeta Phogat was the first Indian woman wrestler to win a gold medal in
Understand? Tawheed writes, Yuri Gagarin was the first man to travel into space. Very good. Marie Curie was the first woman to win a Nobel Prize. Very good, Tawheed. The magician's tricks amaze the children. The magician's tricks amaze the children. Tawheed, where is Samir? Tell him not to go absent from this class. Maybe he's thinking he will join the new batch, but when he will join the new batch, until then he has to be here. He'll join the new Yes, sir. batch. Yeah. So he said he's not feeling well. Okay, okay. I thought he told me that he would join a new class, but then I thought maybe he decided that he will wait. Going out of touch with English is not going to be good. Okay, sir. Mm. The magician's tricks amaze the children. Very good sentence, Tawheed. And he felt amazed when he saw the full moon. All right, very good. Sahil, Abhinav Bindra became the first man in India to win to win medals in Olympic. No, I don't know. Abhinav Bindra, guys, what medal did he win? Gold, silver, Abhinav? Huh? Gold medal. Abhinav Bindra became the first man in India to win a gold in Olympics. Yuvraj wrote. Yuvraj also wrote a good sentence. It's not 100% correct, लेकिन बेटा आपने कोशिश की, बहुत अच्छी बात है, Yuvraj. My grandfather was the first man छोड़ दिया आपने, who took a government job. Okay, बहुत बढ़िया बेटा. In BSF in 1962. My grandfather was the first man in my house, in my family, who took a government job. To take a government job, है ना? बाद में उसको to take भी लिख सकते थे. My ध्यान रखने वाली बात है, उसका टेंस से कोई लेना देना नहीं, वो टेंस से आजाद होता है. मतलब पास्ट टेंस में बोल रहे फिर भी 2+V1 हमेशा टेंस से आजाद होता है. जहां भी 2+V1 आया ना, उसको टेंस से चेंज नहीं करते. आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू, हम जाना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू गो. लेकिन हम जाना चाहते थे को भी हम वैसे ही बोलते हैं, आई वॉन्टेड टू गो. टू गो आजाद होता है, वो नहीं चलता टेंस के हिसाब से. ओके. वेर बेटा, बेटा लॉन्च रॉकेट मतलब रॉकेट को लॉन्च करना होता है, राइट? मतलब फायर करना, राइट? ओके. They built a rocket, they made a rocket, they developed a rocket, they developed a rocket, but they did not launch a rocket. Launching is not the right verb. Okay, we were reading the text, guys. The flight wasn't easy. Mr. Blériot, a 37-year-old engineer, couldn't swim. Couldn't swim. Couldn't is the past tense of can't. He couldn't swim. उनको तैरना नहीं आता था. So he didn't want to come down in the channel. And he was flying over English Channel. He would have died. He would have died if he had fallen into the channel. Channel में अगर गिर जाते वो, if his flight had crashed, if his aeroplane had come down in the channel, he would have died because he couldn't swim.
He couldn't walk very well. को चलना नहीं आता था। वेरी वेल नहीं, चलना नहीं आता था नहीं बोल पाएंगे यहाँ पे, यहाँ बोलेंगे चलना नहीं आता था, यहाँ बोलेंगे उनको चलना नहीं आता था। ही कुडंट स्विम की हिंदी करेंगे उनको तैरना नहीं आता था। तैरना इज एन एबिलिटी, लेकिन क्या बोलेंगे ही कुडंट वॉक वेरी वेल, मतलब उनको अच्छे से चलना नहीं आता था, क्या कहेंगे हिंदी यहाँ पे? वो चल नहीं पाते थे ठीक से। चल नहीं पाते थे। एक ही इंग्लिश वर्ड के अलग अलग सिचुएशन में अलग हिंदी हो सकती है, लेकिन दोनों में इनएबिलिटी की बात हो रही है ना, इनएबिलिटी, एबिलिटी का कमी, लैक ऑफ एबिलिटी। ही कुडंट स्विम एंड ही कुडंट वॉक। ठीक है, तो ऐसे खाली बोलने पे ही कुडंट वॉक, आप कुछ भी हिंदी कर दो, उसको चलना नहीं आता था, वो चल नहीं पाता था, दोनों ही सही हिंदी है। यहाँ पर कौन सी हिंदी होगी? वो चल नहीं पाते थे बढ़िया से। ही कुडंट वॉक वेरी वेल बिकॉज ऑफ एन इंजरी। और वो किस वजह से चल नहीं पाते थे? बिकॉज ऑफ इंजरी एन के इंजरी। Of his, बिकॉज ऑफ एन इंजरी, रिपीट द फ्रेज। because of बिकॉज Because an of injury. an injury. And if the student sitting at the back cannot hear me very well, if I'm not speaking very loudly, then you guys need to come in the front because I'm not going to speak louder than this. Okay. If you can't hear me very well, then please come and flock around me. Okay. Sit around me here. What the meaning of flocks are? The same which I said after flock. How do you say? I said after flock, sit around me. So flock around me means sit around me. Okay. Ravi and you to switch off the fan, switch on this fan and sit somewhere near. I'm not planning on speaking any more loudly. Uh, no, no, not the other one. Yes, fine. Keep this on. This one is on. Fine, fine, it's on. Switch on that one. No. Yep, yep. All right, and you too, don't sit there, sit somewhere here. Hey, Ravi, sit here. Ravi, sit here. छह साल के बच्चे को जैसे पढ़ाया जाता है वैसे कुछ बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं हम। उनमें से है एक ये। आगे बहुत दूर रहना है, सबसे दूर रहना है। तुम डंडा लेके बैठे हुए हैं। ओके, एनीवेज, तो बेटा दो सेंटेंस है। ही कुडंट स्विम एंड ही कुडंट वॉक, बट वी विल ट्रांसलेट देम इन डिफरेंट वेज हियर इन हिंदी। उनको तैरना नहीं आता था, सो ही डिडंट वांट टू कम डाउन इन द चैनल। तो गिरते तो मुश्किल हो जाती, he would have died. He couldn't walk very well. तैर चल नहीं पाते थे अच्छे से। He couldn't walk very well. Past tense of can't, because of an injury to his leg. He couldn't attend the class. He couldn't. आगे because of करके reason दे दो। Because of, because of, because of. I'm going to village. हाँ, देखो वहां पर क्या लिखा है, because of an injury, because of an injury, because of an injury, इंजरी की वजह से, राइट, चोट की वजह से, है ना, यही हुआ ना। मैंने आपसे कहा आई ही कुडंट अटेंड द क्लास बिकॉज ऑफ, I'm going to teach. बिकॉज ऑफ
कोई वजह दे दो, जोर से बोलना। बिकॉज आई एम, बिकॉज ऑफ सिकनेस, बिकॉज ऑफ सिकनेस, वेरी गुड। Sickness. और दूसरी रीजन दे दो, वो तो उसका रीजन, कोई और इमेजिनेशन करके बताओ। He couldn't attend the class because of, Yuvraj, mute yourself, Yuvraj. It's very noisy from your side. Yuvraj, there is a lot of noise. Mute yourself, Yuvraj. There is a lot of noise from your side. Yes, Yes. people. कोई और वजह दीजिए। He couldn't attend the class because of fever, I, because of I couldn't attend the physical class because of bike problem. because of and because, बहुत बड़ा फर्क है। अरे युवराज, म्यूट करो यार, क्या कर रहे हो यार तुम? पूरा नॉइज आ रहा है। ऑलराइट गाइस, तो मैं बोल रहा था आपको कि बिकॉज एंड बिकॉज ऑफ आर नॉट द सेम थिंग। ही couldn't attend the class because he was sick. He couldn't attend the class because he was sick. He couldn't attend the class because he had a fever. He had a, अब बिकॉज जब बोलते हो तो देखो क्या बोलते हो, और बोलो बिकॉज ऑफ। He couldn't attend the class because of his mother. He couldn't attend the class because of his, okay, he couldn't attend the class because of his mother's health, because of his mother's ill health, right? He couldn't attend the class because of the traffic. He couldn't attend the class because of the traffic. Okay. So because of something, I'm good at English because of you. I'm good at English because of you. अगर कोई बोले तो क्रेडिट दे रहा ना सामने वाले को। I'm good at English because of you. I'm good at English because you helped me. You taught me. है ना, दोनों में फर्क हो जाता है ना। बिकॉज ऑफ फील करके समझ सकते हैं। बाकी इसके ग्रामर के बारे में मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा। ओके, वो सब अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है मेरे नजर में। आपको टीचर बनना है इंग्लिश का, या इंग्लिश लिखना बोलना अच्छा है, क्या करना है? हाँ, तो बात समझ में आ रही होगी आपको। बिकॉज के बाद क्या बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ के बाद क्या बोल रहे हैं? हाँ, वी आर पुअर, वी आर पुअर because of our uncle. We are poor because of our uncle. Because of our uncle. अब हिंदी में क्या बोल रहे हैं? चाचा जी की वजह से हम लोग गरीब हैं। चाचा जी की वजह से। We are poor because of our uncle. Right? Because बोल दूं तो फिर पूरी बात बोलनी पड़ेगी, एक सेंटेंस बोलना पड़ेगा। We are poor because our uncle did not give us our share of money or wealth from our dada's, wealth. Because he did not give us. Because he did not give us. Right? Yeah. Because his English is getting better because of his hard work. His English is getting better because of his hard work. His hard work. His English is getting better because of his hard work. His English is getting better because he is working hard. His English is getting better. उसकी English बेहतर हो रही है because he is working hard. Because he is working hard. Yes. So he couldn't walk very well because of an injury. Because of an injury to his leg. अब इस हाँ,
क्योंकि आप हिंदी में सोच रहे हैं ना, आप हिंदी में सोच रहे हैं, इसीलिए आप इन क्यों सोच रहे हैं। प्रीपोजिशन में हमेशा मेरा एक ही जवाब होगा, ठीक है। कोई भी प्रीपोजिशन जब आप पढ़ेंगे और उसके जगह कोई और प्रीपोजिशन आप सोचोगे, तो जो आप सोचोगे, आप क्यों सोचते हो कोई और प्रीपोजिशन, आप पहले इस बात को सोचो। आपके मन में इन क्यों आया, ऑन क्यों नहीं आया, विद क्यों नहीं आया, क्योंकि आपकी हिंदी में पैर में चोट लगता है। मैं सही बोल रहा हूँ। और मे की इंग्लिश आपको इन बताई गई है, उस हिसाब से प्रिपरेशन नहीं डिसाइड किया जा सकता। क्या समझे भाई साहब, उस हिसाब से प्रिपरेशन डिसाइड नहीं किए जाते कि आपके हिंदी में क्या चलता है। आपको इंग्लिश में प्रिपरेशन देखने होंगे कैसे यूज होते हैं, और उनको एक्सेप्ट करना होगा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स बोलने में कोई कॉमन सेंस नहीं लगता, लगता है ये पागल वाला सेंटेंस है। लेकिन जिसको इंग्लिश में अच्छी बोलने की आदत पड़ जाती है, वो आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स ही बोलता है। लेकिन जिसको नहीं पता है इंग्लिश अच्छा, जिसको नहीं आता उतना, वो बोलता है आई एम अफ्रेड फ्रॉम डॉग्स। क्या बोलता है वो, और क्योंकि फ्रॉम मतलब से होता है, और वो हिंदी में बोलता है कुत्तों से डर लगता है, तो वो फ्रॉम बोलता है। तो ये एक एग्जाम्पल बताने के लिए कि आप प्रीपोजिशन कॉमन सेंस से नहीं लगाते। प्रीपोजिशन फिक्स्ड है। दो यूजेस हैं प्रीपोजिशन के, एक फंक्शनल यूज, एक फिक्स्ड यूज। फंक्शनल यूज में आपको फंक्शन समझना होता है, उनका वजह क्या है। और फिक्स्ड में उनके जिस वर्ड के साथ वो फिक्स्ड है, वो वर्ड को इसके साथ, आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स बोलते हैं हम, राइट। आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, यहाँ अफ्रेड की वजह से वो ऑफ फिक्स्ड है। जब भी अफ्रेड आएगा ऑफ आएगा। किसी से भी डर लगता है, आई एम अफ्रेड ऑफ माई टीचर, आई एम अफ्रेड ऑफ माई सेल्फ, मुझे खुद से डर लगता है, whatever। तो अफ्रेड के बाद ऑफ फिक्स्ड है, वो उसका कुछ नहीं कर सकते। वैसे ही आपने पढ़ा है एक फ्रेज, एन इंजरी टू हिज लेग, बिकॉज ऑफ एन इंजरी टू हिज लेग। तो ये फ्रेज को एक्सेप्ट करिए, एन इंजरी टू हिज लेग, एन इंजरी टू हिज राइट आर्म, एन इंजरी टू हिज हेड। ओके, तो ये फ्रेजेस बन गए आपके दिमाग में। आपने इन सोचा ही सिर्फ हिंदी की वजह से, और यहाँ ये भाषा कौन सी सीख रहे हम लोग, तो लॉजिक हिंदी वाला क्यों चलेगा, नहीं चलेगा। सही जवाब दिया मैंने आपको, ऐसा जवाब जिससे आप आगे तैयार हैं और अच्छा सीखने के लिए। मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊं टू के एक ये रीजनिंग, ठीक है, हिंदी को जस्टिफाई करने के लिए, तो आप फिर अगली बार ऐसे ही फंसोगे। मैंने कहा हिंदी को आप हटाओ दिमाग से कि हिंदी की वजह से इंग्लिश हो सकता है। अगर कुछ इंग्लिश में सही है, सोर्स सही है, होना चाहिए, राइट। मान लो यू आर लिसनिंग टू द बीबीसी, दे डोंट स्पीक बैड इंग्लिश ऑन द बीबीसी, ओके। So if the presenter is saying something in English which kind of challenges your common sense, but accept it. If you trust your source, learn what you listen to. When English people or Germans or French or Russians, when they learn Hindi, क्या है उनके पास ऑप्शन, जो सुनते हैं बेचारे हमारे मुंह से, उसको एक्सेप्ट करते हैं कि अच्छा इसे बोलना है, आगे ना। एक हम ही है जो अंग्रेजों को चैलेंज करते हैं, ये कैसे बोलेगा, ये नहीं बोलेगा वो काय बोलेगा, तुम बताओ उसको इंग्लिश कैसे बोलना है। ये इसलिए हुआ क्योंकि शुरुआत से हम लोग ऐसे टीचर्स मिले जिनको इंग्लिश आती नहीं थी, तो उन्होंने हिंदी और इंग्लिश का रिश्ता बनाना शुरू कर दिया आपके सामने। तो आपके दिमाग को एक मैसेज चला गया है कि इंग्लिश सीखना मतलब हिंदी इंग्लिश का रिश्ता बनाना। कंपेयर करना इज अ गुड आइडिया, आई वोंट माइंड, कंपेयर करो कि ये ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। But if you had an Englishman as your teacher, first teacher, imagine this situation. Imagine that you guys have an Englishman as your first teacher, or a person who is at least fluent in English. Okay? He or she doesn't face any sort of problem communicating in English. Is very fluid in English, fluent and fluid, speaks effortlessly. And if that person is teaching your child when he first goes to school, then what will that person teach your child? He will teach your child natural English.
and your child or nephew or cousin, whoever, will develop a habit for English phrases. Fluency comes from that. And that's why a lot of schools in India, a lot of schools in India hire Americans, Britishers, people from England as teachers for English. They hire other nationals as English teachers. In India, there are schools, but they are very expensive schools, and only rich people's children go there. I met two women in Patna. They both worked for the, there is a company, BBC has a company. It basically supervises the learning and teaching of English in India. Okay. And many other countries as well. I'm just forgetting the name of that company. So they approached us here and they asked us to visit them. They were interested in opening a center in Bihar Sharif for IELTS exams. They wanted to provide STC, the license to conduct IELTS exams, because they kind of got to know about us. So they invited us. We went there and we met the two ladies. Okay. They were running the whole, matters here in Patna. One of them was so good at English, so good. And she was a science teacher coincidentally. She was not a teacher for English, a teacher of English. She was a science teacher. And the other one was not speaking very well. She was okay. She was an English teacher. So I inquired more about their, learning. So the one who was very good was just fluid. She said that she had an American woman teaching her when she was in the primary school and middle school. I said, all right. She was from a very good family. Okay. So the point was, guys, that this kind of question comes only because of the way we have studied. An injury in our leg. बहुत से मैं नहीं मानता कि आपको नहीं आना चाहिए कन्फ्यूजन। जब जिस तरह से आप पढ़ोगे आना ही है। आपने पढ़ा है इन मतलब में, अगर इन खाली इन पढ़ते जाते जहां जहां इन होता रहता है, लेकिन इन मतलब में नहीं बोला जाता, तो आपका दिमाग जहां इन मतलब में चाहिए वो समझता। जैसे आपको एक बच्चे इस दोनों सेंटेंस को लेके किसी भी गांव के स्कूल में चले जाना है, या कोई भी बिहार शरीफ के ऐसे एक जगह चले जाना है जहाँ टीचर हिंदी बोल के पढ़ा रहा हो, बस इतना करना है तुम और कुछ नहीं। ठीक है, अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो ये कर लो। यहाँ लिखा है ही कुडंट स्विम, राइट, मिस्टर ब्लेरियो कुडंट स्विम, और थोड़ी देर बाद लिखा है मिस्टर ब्लेरियो ही कुडंट वॉक वेरी वेल। अगर एक जगह तुम्हें ऐसे स्टूडेंट्स मिल जाएं पूरे बिहार शरीफ में जहां हिंदी में पढ़ाई जा रही बात है, ठीक है, एक जगह ऐसे स्टूडेंट मिल जाए जो इसको दो तरह से ट्रांसलेट कर देंगे, तो तुम पार्टी ले लेना मेरे से, बड़ा सा पिज्जा पार्टी, 2,000 रुपये खर्च करेंगे तुम्हारे ऊपर, चलो। और नहीं तो फिर क्या। मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूं क्योंकि हमारे को जैसे पढ़ाया जाता है हम वैसा ना रिएक्ट करेंगे। तो कैन मतलब सकना पढ़ाया जाता है, बोलो हाँ के ना, सकना के अलावा कुछ बोला जाता है हम लोग को। तो जब जैसे ही मुंह पे कान में कैन आएगा मुंह पे सकना आ जाएगा। ही कैन सिंग, वो गा सकता है। ही कैन वॉक, वो चल सकता है। वो सकता है से अलग जा नहीं सकेंगे वो। फिर पास्ट हुआ, ही कुडंट सिंग, वो नहीं गा सकता था, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, ही कुडंट स्विम, वो चल स्विम नहीं कर सकता था। ही कुडंट वॉक, वो चल नहीं सकता था। सकना छोड़ के कुछ बोल दे उनके मुंह से निकल जाए, इम्पॉसिबल। इसीलिए when I teach can in unit 5, I ask you guys to appreciate different sentences in different contexts. I can't find my sunglasses. बोलो कि मैं अपना चश्मा नहीं ढूंढ सकता हूँ, बोलो और बन जाओ बेवकूफ। कोई ऐसा बोला आज तक लाइफ में, मैं अपना चश्मा नहीं ढूंढ सकता हूँ? बोलेगा मेरे को चश्मा नहीं मिल रहा है, आई कांट फाइंड माई सनग्लासेस। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना, व्हेन यू आर लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश इज एन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। हाँ, ऐसे आएगा मन में, लेकिन उसका सोल्यूशन ना तुम्हारे ही पास है। क्या?
कि भाई इंग्लिश में यही है, वो हिंदी में होता है पैर में चोट लगता है, पैर में चोट लगता है, एंड बिकॉज ऑफ एन इंजरी टू हिज लेग, he couldn't walk very well because of an injury to his leg, because of, I don't believe in love because of you, I don't believe in love because of you. बोलो कौन बोल रहा है, किसको बोल रहा है, अगर तुम्हें समझ है थोड़ी बहुत तो। सर लड़का लड़की को बोल रहा है सर। लड़का लड़की को बोला, लड़की लड़का को नहीं बोल सकती। कब बोल रहा है, ऐसा बहुत when, कम ही होता है। धोखा खाने के बाद, धोखा खाने के आफ्टर बाद, ब्रेकअप। राइट। तब ये लाइन बोलता है, आई डोंट बिलीव इन लव बिकॉज ऑफ यू। ओके, there is a song because of you. I walk on the sidewalk because of you. I walk on the sidewalk. हम साइड में चलते हैं तुम्हारी वजह से। मतलब ऐसा धोखा दिया है तुमने कि लाइफ में कि अब हम बच बच के गाड़ी चलते चल हैं। I walk on the sidewalk. On the morning, okay, beta, and the third reason why the flight was difficult, he didn't have a compass. He didn't have a compass. कैंपस। He didn't have a compass. On the morning of the 25th, he took off at 4:30 from a field on the morning of the 25th. Better normally we say in the morning, but we can say on the morning of the 25th. On the morning of the 25th. 25। खाली सुबह में अगर बोला जाए ना कि हम इंग्लिश सुबह में क्लास जाते हैं, आई गो टू माई इंग्लिश क्लासेस इन द मॉर्निंग, लेकिन 26 तारीख की सुबह में on the morning of the 26th of August, I was in the park. Okay. On the morning of the 25th, he took off. You know? He took off. He took off. The meaning is not clear from the verb take and off. Meaning is not clear. So these are called idiomatic phrasal verbs. They are called idiomatic phrasal verbs because the meaning is not clear. He took off. कैसे पता चल जाएगा टेक से, कैसा लेना देना इसका, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन रट्टू तोता जो हम लोग बने हुए हैं तो हम लोग याद कर लेते हैं टेक ऑफ मतलब ऐसे रटे तो, लेकिन समझो द मीनिंग इज नॉट कमिंग आउट फ्रॉम द वर्ड्स। अगर मैं कहूं पिक अप द पेन, पिक अप द पेन, तो मीनिंग समझ में आ रही है ना, पिक अप द पेन फ्रॉम द फ्लोर। ओके, तो समझ में आ गया। आई फेल डाउन, माई फ्रेंड्स पिक्ड मी अप, तो समझ में आ रहा है मीनिंग, वर्ड से ही समझ में आ रहा है। तो ये इडियोमैटिक नहीं है। और कुछ जगह पे मीनिंग समझ नहीं आते शब्दों से, उसका कनेक्शन नहीं होता। He took off. His plane took off. On the morning of the 25th, he took off. Took off is the V2 of take off. He took off. कोई was verb है बेटा? नहीं ना? He took off. Subject, verb 2, he took off. At 4:30. He took off at 4:30 on the morning of the 25th from a field. Timing is clear now. Place, from a field. He took off from a field. And where was the field? At the edge of a cliff. At the edge. Edge. Everybody knows edge. The edge of the chair, the edge of the table, the edge of the computer screen, the edge of the bat. Okay. When a batsman is not in a good form, then he can't middle the balls. He plays shots and the ball hits the edge of the bat, not the middle of the bat, when he's not in a good form. And when he is in a good form, the ball always hits the middle of the bat. Edge.
Hey, this knife has a very sharp edge, right? Okay, edge, spelling EDGE. Edge of a cliff. Edge of a cliff. चलो, cliff बता. Cliff. Cliff is a rock. Cliff is a rock. And there are certain features of a cliff. I will share my screen and at the same time, thank you. Warm water or normal water? You don't know. Ask Mosi whether it is warm water or normal water. Okay. So a cliff is a rock next to the sea. All right. One side is facing the sea and that side is vertical standing. And normally the top is flat. The top is flat, not pointy, flat. I'll put a few photos for you and put in the group. Check out the photos. A cliff. It is a cliff. So these are cliffs, guys. So he decided to take off from a field, from a field. And where was the field? At the edge of a cliff. At the edge of a cliff. Cliff के edge देख सकते हैं आप? All the photos that I've shared. वहां से धड़ाम से गिर गया. But he was in his plane, so the plane. Back then, they didn't have, what do you call them? Runways and all. वो सब बाद में आए ना? On the morning of the 25th, he took off at 4:30 from a field at the edge of a cliff. It took 37 minutes. It took 37 minutes to complete the 22-mile journey. अभी फिर से आ गया टेक का हेल्प ना आपको रिवीजन. It took 37 minutes to complete the 22-mile journey. So anybody would say, how long did the flight take? 37 minutes. How far was the journey? 22 miles. It's written right here. It took 37 minutes to complete the 22-mile journey. How far was the journey? 22 miles. 20 How far was the journey? 22 miles. 22 miles. 22 miles. How old are you? How old are you? बात खत्म हुआ. वही लॉजिक लगाओ. How far was the journey? 22 miles. The journey was 22 miles long. The journey was 22 miles long. Okay. I am 45 years old. Okay. बात समझ में आ रही है? वहां पे एस नहीं लिखा है, वहां हाइफन देखो और उसके फ्लो को देखो, उसके सेंटेंस पैटर्न को देखो ताकि पता चले वहां एस क्यों नहीं है. To complete the 22-mile journey. The 22-mile journey. वो एडजेक्टिव है. जर्नी के बारे में कुछ पता चल रहा है? जर्नी इज अ नाउन, राइट? तो जब एडजेक्टिव हो कोई वर्ड तो एडजेक्टिव में एस नहीं होता, प्लूरल नहीं होता.
द 22 माइल जर्नी। हाँ, द 22 माइल जर्नी में जर्नी नाउन है, और नाउन के पहले एक वर्ड आ रहा है, फ्रेज आ रहा है, जो उसके बारे में कुछ बता रहा है, उस जर्नी के बारे में। तो जो नाउन के बारे में कुछ बताए वो एडजेक्टिव होता है। क्या कॉमन सेंस वाली बात है? जो नाउन के बारे में बताया वो क्या होता है? और एडजेक्टिव्स इंग्लिश में प्लूरल नहीं होते, सिंगुलर प्लूरल नहीं होते एडजेक्टिव्स। द 22 माइल जर्नी, आप बोल सकते हैं माई 45 ईयर ओल्ड टीचर। माई 45 ईयर ओल्ड टीचर, ऐसा हटा दोगे, क्योंकि आप टीचर के पहले उसको लगा रहे हो एडजेक्टिव के तौर पे। माई 45 ईयर ओल्ड टीचर। ओके, हैज ऑल ग्रे हेयर, राइट। चलो, माई 45 ईयर ओल्ड टीचर हैज ऑल ग्रे हेयर। आपने बताया कि आपके एक टीचर है, उनकी उम्र 45 साल है और उनका सारा बाल वाइट है। आपने सारी बात एक सेंटेंस में बोल दी। कैसे? माई 45 हाइफन ईयर हाइफन ओल्ड टीचर हैज ऑल ग्रे हेयर। अनदर सेंटेंस। I'm doing a I'm doing a 6 month course. I'm doing a 6 hyphen month course. Course is a noun. उस नाउन के पहले कुछ तो पता चला, उस कोर्स के बारे में क्या पता चला है कि 6 महीना चलेगा। तो एडजेक्टिव है ना वो जो बता रहा है उसके बारे में। एडजेक्टिव्स में एस नहीं लगता इंग्लिश में। आई एम डूइंग ए 6 hyphen month course। अब उसके बाद बोल दिया आपने। किसी ने पूछा व्हाट डिड यू से, हाउ लॉन्ग इज द कोर्स। किसने पूछा हाउ लॉन्ग इज द कोर्स? आप बोलेंगे 6 मंथ्स। द कोर्स इज 6 मंथ्स लॉन्ग। जैसे ही आपने ऐसे बोला द कोर्स इज, तो 6 मंथ्स लॉन्ग, ठीक है। तो जब आप बी वर्ब के बाद इसको बोलते हैं तो आप नॉर्मल जैसे बोलना चाहिए, एस लगा के बोलते हैं प्लूरल। लेकिन जब उसको नाउन के पहले रखते हैं, कोर्स के पहले 6 मंथ बोलना चाहते हैं, 6 मंथ कोर्स, 6 मंथ लॉन्ग कोर्स, तो हम सिंगुलर बोलते हैं, 6 मंथ, मंथ्स नहीं बोलते हैं। और ये बार बार हम लोग किए हैं अब तक, बहुत बार कर चुके हैं पहले। इसके पहले कई बार ये फ्रेजेस आए हैं इस तरह के। अगर आप रीडिंग करना शुरू करोगे यूनिट 1 2 3 4 5 6, you will find this many times, 2 3 times at least. And in unit 8 9 10 11 12 again you'll find this phrase जहां पर सिंगुलर ही आ रहा है। So it took 37 minutes to complete the 22-mile journey. The plane flew at 40 miles per hour. The plane flew at 40 miles per hour. Speed. The plane flew at 40 miles per hour. At की हिंदी करो, पहले भी करवाया, एक बार और करो। At की हिंदी दीजिए। पर यस समीर, at की हिंदी दीजिए सारे लोग। पर पर बोला आपने समीर। आप लोग अपने आप को थोड़ा ग्रो कराइए बच्चों, ऐसे नहीं चलेगा ना। पढ़िए सामने से। द प्लेन फ्लू एट 40 माइल्स पर आवर। ठीक है, बस इतनी बात है। आपको हिंदी तो समझ में आ गई, तुरंत समझ में आ गई, हाँ कि ना? हिंदी समझना 30% काम हुआ, 70% बाकी है काम। बाकी वर्ड्स को देखिए, फॉर्म को देखिए, अरेंजमेंट देखिए, और चीजें सीखिए, वो है 70%। उसमें एक आएगा कि ऐट की क्या हिंदी करें हम। कर लीजिए और बताइए मुझे। एक बोला पर, एक बोला से। और कोई बोलेगा कुछ? हम ये यूनिट 2 में सिखाते हैं।
जब ट्रेन ड्राइवर ब्रायन लॉ के बारे में पढ़ाते हैं, और हम पढ़ाए होंगे हर एक क्लास में कि ऐट की हिंदी बताइए, क्योंकि आपके दिमाग को तो बांध के रखा हुआ है, छोटा सा वर्ड है ऐट, तो आप लोग भी छोटा सा हिंदी कर रहे हैं, कोई कह रहा है से, कोई कर रहा है पर, कोई बड़ा वर्ड नहीं बोल पाएगा कोई, पता है क्यों? क्योंकि उसको छोटा सा इंग्लिश वर्ड दिख रहा है ऐट, तो उसका दिमाग बंधा तो हुआ है कि जब छोटा चालीस सा इंग्लिश वर्ड है। 40। 40 से कोई 40 तो बोलना नहीं है, क्योंकि हम तो ऐट की हिंदी पूछ रहे हैं। अच्छा, सेंटेंस की हिंदी करो, चलो समझ से आएंगे। The प्लेन plane flew at 40 40 माइल्स पर miles आवर per की hour. रफ्तार से ट्रैवल किया, उड़ा। द प्लेन हाँ, फ्लू एट 40 माइल्स पर आवर, यही बोले ना। अब जरा सा अलग अलग कर लो, छांट लो कि इसका ये हिंदी हो गया, इसका ये हिंदी, जो बच गया वो एट का हिंदी हो गया। करो, क्या हुआ? के रफ्तार से, एट से क्या, एट की हिंदी क्या हो गई? के रफ्तार से। नहीं, हुआ कि नहीं हुआ? देखो तो, द प्लेन फ्लू, प्लेन उड़ा 40 माइल्स पर आवर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आके क्या बोलना है? की रफ्तार से, और वहां एक ही वर्ड है बात, बात के अलावा उसके अलावा। तो तुम्हारे दिमाग को बांधा है कि एट छोटा सा वर्ड है, तो छोटी सी हिंदी दे रहे हो। कोई बोल रहा है पर, जो कि रटा हुआ है, कोई बोल रहा है से, लेकिन तुम से आगे नहीं बढ़ पाए। चलो से लगा के देखो तो, प्लेन उड़ा 40 माइल प्रति घंटा से, ऐसे बोलते हैं? प्लेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा से उड़ा, ये हिंदी था। तो कैसे तुमने किया ये? क्योंकि तुम उतना सोच नहीं पाते आजादी के साथ। बोलो, जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत मुश्किल है या एकदम आसान था, लेकिन तुम्हारा बंधा हुआ दिमाग नहीं देख पाया? पहले बताओ, क्या कुछ छुपा हुआ मीनिंग निकला या सामने रखा हुआ था मीनिंग? फिर नहीं क्यों देख पाए हम लोग? जब छुपा हुआ था मैंने खुद बताया, टुक ऑफ, लेकिन उसमें तुमको याद है प्लेन टेक्स ऑफ, आपको याद है उड़ना? क्या है, रट्टा मारे हो, पढ़े हो? तोते की तरह टेक ऑफ मतलब उड़ना, प्लेन टुक ऑफ। सोचोगे कब रटने के अलावे? मेरी वाइफ ने कल उस अविनाश को दे दिया, राइट द नेम्स ऑफ द डेज। मैंने बैंड बजा दी वाइफ की, मैंने पूछा क्यों दी, क्या फायदा होगा इसको? तुम्हें पता है, अदिति ने अपने पूरे बचपन में एक बार भी कोई स्पेलिंग याद नहीं किया, कोई चीज की स्पेलिंग नहीं। ना कभी उसको होमवर्क मिला स्पेलिंग याद करने के लिए, और ना कभी उसको डांट पड़ी, एक बार नहीं। अब बोलेगे कैसा पढ़ाई हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और उसकी इंग्लिश बाकी किसी की इंग्लिश से बेहतर है, खराब नहीं। स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, हर चीज। अल्टरनेटिव मेथड्स जो इफेक्टिव है, उसमें लगना पड़ता है। अविनाश को उसकी मौसी दे दी, मेरी वाइफ क्या दे दी, भाई लिखो डेज ऑफ द वीक स्पेलिंग। मैंने पूछा इससे क्या, अगर बाय द वे वो सीख जाए, सपोज वो सातों सीख जाए, सातों दिन के नाम अच्छे से सीख जाए, अगली चीज सीखते समय उसको क्या इससे फायदा मिलेगा? अगली चीज उसको सीखने में इससे क्या फायदा मिलेगा? एक सवाल पूछो अपने आप से। कोई चीज अगर हम आज सीख रहे हैं, कल दूसरी चीज सीखेंगे उसी सब्जेक्ट में, हम अगले अलग सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, तो क्या इस लेसन का उससे कनेक्शन होना चाहिए कि नहीं, कि हाँ इसका फायदा हमको मिले? जैसे मैथ्स में आप जोड़ सीखते हो ना, गुना सीखने जाते हो, उस जोड़ का फायदा मिलता है कि नहीं मिलता है? कर लोगे बिना जोड़ सीखे गुना? तो आपको पहले जोड़ सिखाया जाता है, एक सिस्टम है ना। इंग्लिश में ये चीज नहीं है। तुम्हें लिखा, 5 सब्जी के नाम लिखने के लिए दे दी थी वो, 5 फल के नाम लिखने के लिए दे दी थी। मैंने कहा इससे क्या हो जाएगा, बच्चे पर प्रेशर के अलावे क्या पड़ रहा है? वो रट्टा मार रहा है बच्चा बैठ करके कि इसका ये स्पेलिंग, उसका वो हिंदी। लेकिन जब वो अगली चीज इंग्लिश में सीखना चाहेगा, तो उसका इससे क्या फायदा होगा? उल्टे और बर्डन बढ़ेगा, यही भी याद रखो, वो भी याद रखो, वो भी याद रखो। तो थोड़ी सी बहस में आ गई मेरी वाइफ, उनको घमंड हो गया है, बीएड वगैरह करे हुए है ना वो भी, तो थोड़ा बहस में आ गई मेरे से, आपका तो अलग ढर्रा चलता है। मुझे को बड़ा गुस्सा आया
कि मेरा अलग ढर्रा चलता है, समझ नहीं आता तुम्हें क्या किया है मैंने अदिति के साथ। तो मैंने कहा कि देखो, अगर आप इस तरह की चीजें कराएंगे बच्चे से, 15 चीजें याद कराए तो एक दिन याद कराए तो एक चीज याद हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, अब वो कनेक्ट नहीं है एक दूसरे से। आप क्या करें, बर्डन बढ़ा रहे हैं। अगर बाय द वे अगले 2-3 साल तक उसको दिनों के नाम की स्पेलिंग नहीं याद हो, चलो मान लेते हैं 2-3 साल तक, तो कौन सा वो मैट्रिक एग्जाम देने जा रहा है जहां उसको मुश्किल हो जाएगी? आप टाइम तो देखो, सीखने का टाइम तो देखो। ही इज जस्ट 8-9 years old, 8 years old, ओके, 7-8 years old। अगले 2-3 साल तक उसको स्पेलिंग नहीं याद होगी परफेक्टली, मुझे पता है, ठीक है, जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ। होगा क्या, बार बार किताब में मंडे आएगा, बार बार थर्सडे आएगा, ठीक है, हम उसको बोलने के लिए बताएंगे थर्सडे, उसको पहचानेगा वो, ठीक है, लैंग्वेज के साथ, सेंटेंस में, छोटे छोटे सेंटेंसेस में ऐसे टेक्स्ट उसके सामने होने चाहिए जो सेंस बनाते हो। जैसे उसने मैथ्स की किताब में पढ़ा, चिल्ड्रन लव मीकू अंकल, मैथ्स की किताब में लिखा है दोस्तों, चिल्ड्रन लव मीकू अंकल, ही प्लेज विद देम, ठीक है, ये मैथ्स की किताब में लिखा है। मैंने कहा पढ़िए, तो पढ़ा, उसका सेंस निकालिए। वर्ड समझते हैं बच्चे थोड़े बहुत, सुनते रहते हैं आसपास, तो लव मतलब पता हो जाता है, तो उसने मतलब निकाला। और अब ये पढ़ना, अब इसी को लिखना राइटिंग के तौर पे, इससे सेंस बनेगा उसके दिमाग में, एक सेंटेंस फॉर्मेशन का। ये जो मदद हेल्प हुई, ये जो समझ आई इसके दिमाग में इंग्लिश की, ये नई चीज सीखने में मदद कर देगी। स्पेलिंग के नाम अभी याद ना होंगे उसको, अगले 3-4 साल तक नहीं होंगे, लेकिन बार बार जब आप किसी चीज को देख ही रहे हो, पढ़ ही रहे हो, लिख ही रहे हो, तो कितने दिन लगेगा याद करने में? तो उसके लिए स्पेशली याद करके क्या फायदा? ये तो वैसे ही हो गया कि आप खेती करते हैं, और खेती में आखिर में आपको कुछ बच जाता है, कहते हैं ना वो, पैदा करने के बाद कुछ बच जाता है, पुआल वगैरह, लेकिन आप पहले ही से पुआल खरीद के ढप जमा कर रहे हैं, खरीद लेते हैं पुआल। जब आपका फालतू पुआल बनेगा ही तो खरीद रहे हैं क्यों? ठीक है, मतलब आप दिन के नाम, महीने के नाम, कोई भी स्पेलिंग आप ऐसे ही सीखे जाने वाले हो। क्यों सीखोगे बताओ? क्योंकि तुम 3-4 साल तक इंग्लिश पढ़ते रहोगे, तो तुम कैसे नहीं सीखोगे? जब तक तुम्हारे अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, जैसे होता है कुछ जिनको स्पेलिंग वगैरह नहीं आता था, वो जब तक वैसी सिचुएशन नहीं होगी आप सीख जाओगे, नेचुरल है। तो क्यों उसके लिए डांट करके उसको याद करवा देना, खाली इसलिए कि 6 साल की उम्र में क्लेम कर सके कि इसको स्पेलिंग आता है? क्या फायदा हुआ उससे? इसलिए मैंने आपको कहा था, आई हैड द विजन कि कराने की जरूरत नहीं है। एक टाइम, देयर वाज अ टाइम, अदिति वाज 7-8, वो इंग्लिश बहुत अच्छे से बात करती थी, लेकिन बहुत सारे स्पेलिंग्स उसको नहीं पता होते थे उस समय, बोल नहीं सकती थी फटाक से, नहीं बता सकती थी स्पेलिंग, आइडिया होता था, बोल नहीं सकती थी। एंड कोइंसिडेंटली हमारी बहन की बेटी वो मुंगेर में पढ़ रही थी, उससे थोड़ी थोड़ी सी बड़ी है, 6 महीने की, तो उसका स्पेलिंग याद रहता था बहुत सारा। तो संदीप जी कई बार इस चीज को हाईलाइट करते थे कि बड़ा अच्छा स्पेलिंग इसका याद रहता है, अदिति नहीं बता पाती थी, मेरे को कोई टेंशन नहीं होता था। मुझे पता था कि ये तो बस अभी थोड़ा सा कम पका है, थोड़ा देर और पकेगा, हो जाएगा रेडी, क्या टेंशन लेना। आज थोड़ी ऐसा होगा कि आज अनुष्का से किसी स्पेलिंग को गलत लिखेगी, आज वो नहीं होगा, कोई भी नहीं। मे बी कि वो ज्यादा अच्छा लिख दे, बिकॉज ऑफ लैंग्वेज सेंस, बिकॉज ऑफ एक्सपोजर। तो आप हड़बड़ा जाते हैं शुरुआत में, तो यही फर्क है। मैं जब पढ़ाऊंगा ना, तो शुरुआत में आपको बोस्ट ऑफ करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। मान लो आपने पहला दिन मेरा क्लास ज्वाइन किया, दूसरा दिन ज्वाइन किया नए क्लास में, कोई नए क्लास में बच्चा स्टूडेंट ज्वाइन करता है, 5 दिन पढ़ाई करता है, वो जाके किसी के सामने कुछ नहीं बोल सकता कि हम ये जान गए वो जान गए। जबकि वही कोई और टीचर के वहां 5 दिन जाएगा, तो हो सकता है प्रेजेंट सिंपल का रूल सिखा दे, स्ट्रक्चर सिखा दे, पास्ट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा दे, और वो बोस्ट करने लगे हमको 2 टेंस आ गया, समझ रहे हो? तो वो ऐसे ही करेगा, मैं नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि मेरा सोचने का नजरिया ही कुछ और है। आप में से कई इडियट्स हैं, आपको एहसास तक नहीं होता इन सब बातों का जो मैंने भी बोला, कि हाँ ऐसे ही तो होना चाहिए पढ़ाई, इसमें कोई डेडलाइन तो पड़ा नहीं था हमारा कि ये 3 दिन के अंदर आ जाना चाहिए हमको।
हमें ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, दैट हेल्प्स अस इन आवर फर्दर लेसन्स। आपको पता है इंग्लिश में फ्लुएंट होने के लिए छोटा मोटा समय नहीं चाहिए होता है, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। तो क्या मैं पहला दिन क्या पढ़ाऊं जो 100वें दिन आपकी मदद करेगा? ये बात डिसीजन लेना मेरा काम होता है, इस वजह से मैं ऐसे पढ़ाता हूँ जहां पर कोई खास बोस्ट करने के लिए चीजें नहीं होती आपके पास। आप एक उस जमीन की तरह है जिसके अंदर कुछ कुछ बन रहा है, पौधा धीरे धीरे हल्का हल्का बीज से निकल रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा किसी को बाहर। तो क्या ही बोस्ट करेगा, क्या हो रहा है वहां पे? कोई बना बनाया पौधा कहीं से लाके लगा दिया ऐसे, इतना बड़ा पौधा लगा हुआ है। आपकी समझ डेवलप होती है। आई होप कि मेरी बात समझ पाए कि क्यों मेरा एटीट्यूड अलग है। मैंने आपको एकदम सच्चाई बताई कि अदिति को कभी मैंने एक स्पेलिंग नहीं लिखवाया। आप चाहे तो आप उसका टेस्ट ले सकते हैं, बैठा दीजिए कुछ भी, कोई भी न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ करके बोलिए, वो फट से लिखना शुरू करेगी। ज्यादा जितना नॉर्मल स्टूडेंट एक्यूरेसी रखता है स्पेलिंग में, उससे बेहतर एक्यूरेसी उसकी होगी। आप किसी भी 15 साल के लड़की के साथ उसको बैठा दीजिए, उसकी एक्यूरेसी बेहतर होगी, हर हाल में होगी, क्योंकि उसको लैंग्वेज का एहसास है, इंग्लिश का, इसीलिए। और वो सब हासिल हो गया बिना वो टॉर्चर झेले हुए जो बाकी बच्चे झेल रहे हैं। थर्सडे का स्पेलिंग गलत हुआ, तड़ाक तड़ाक याद करके आओ। तुम सबने झेला होगा। शी डिडंट हैव टू गो थ्रू दैट। द प्लेन फ्लू एट 40 miles per hour। एट की हिंदी हुई की रफ्तार से, वो सामने है, तुम खाली देख नहीं पाए। ये आंख कब आएगी तुम्हारे अंदर, जो चीज सामने उसको देखने की? ये पूछो अपने आप से। क्या इसकी हिंदी कर सकते हैं हम? द प्लेन फ्लू एट 40 miles per hour। प्लेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से, के रफ्तार से, की गति से उड़ा, या उड़ रहा था, जो भी। आगे सुनना। एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 250 फीट, फिर से आया एट की हिंदी करो। एट की हिंदी करो। बिल्कुल सही, इस बार पर ही सही है ना? सुनिए, आप लोग फिर घबरा घबरा जाते हो, सोचते नहीं। आपको जब पता है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 250 फीट, एल्टीट्यूड इज द हाइट फ्रॉम द सी, altitude is the height from the sea. Water in all over the world, in all the seas, is at the same height level. Water level समझते हो? Water has a special characteristics. All the water is Yes, sir. connected, right? All the water is connected. Okay, on the earth. So sea level. What is sea level, beta? Sea level is the Sea constant. level, sir. Top. Yes, yeah, the level of the sea, the water, and all the lands that we have, Bihar Sharif, Patna, New York, they are all at different heights from the sea level. कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तुम्हें? आ रहा है क्या? पढ़े हो इसके बारे में? कोई बता सकता है कि हमारा ग्लोब कैसा है, हमारा अर्थ कैसा है? ऊबड़ खाबड़ है, ऊपर नीचे ना। Yes, sir. हालांकि ग्लोब चिकना होता है तो हम लोग को लगता है अर्थ चिकना होगा। इट्स हाई टाइम वी गेट 3D ग्लोब। 3D होना चाहिए, जो जो सब बताए ऐसे ऐसे ऊपर नीचे। पता नहीं, आई डोंट नो इफ इट इज अवेलेबल इन द मार्केट और नॉट अभी तो। विद 3D प्रिंटर इट्स वेरी इजी टू प्रिंट सच ग्लोब्स। इंफॉर्मेशन डालिए कंप्यूटर में और ऐसे प्रिंट करिए बेटा। अ, जो ब्लू ब्लू दिखता है ग्लोब पे, दैट इज वाटर एरिया। वो सबकी हाइट बराबर होगी, सबका लेवल एक होगा पूरे अर्थ पे, ठीक है? Yes. और जमीन जो है ऊपर नीचे है, कोई ऊपर नीचे. बहुत ऊंचा है, कोई सी लेवल से भी नीचे है, लेकिन सी से बहुत दूर है, इसलिए सेफ है, ठीक है? जमीन जमीन ऊपर नीचे है। तो मान लो कि आप भी अपने बिहार शरीफ के बारे में पता करोगे, आई थिंक इट इज 50 meters, पता करो तो। व्हाट इज द एल्टीट्यूड, बिहार शरीफ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ऑफ बिहार शरीफ। देखो ये सब खराब क्वालिटी के एजुकेशन की वजह से ये सब चीजें नहीं पता रहती हमें। एल्टीट्यूड ऑफ बिहार शरीफ
55 meters. 55 meters. Gaya is Yes, sir, at 55 meters. 111 meters. Gaya is 111 meters. 111 यानी स्पेस से meters. देखोगे ऊपर से जाकर के तो बिहार शरीफ जो है वो नीचे है, गया जो है ऊपर है। ऊपर. 50 मीटर ऊंचा है गया बिहार शरीफ से। जैसे दो घर ऊपर नीचे होता है ना, वैसे बिहार शरीफ को एक घर मानो, गया, थिंक ऑफ गया एज ए हाउस। तो गया इज मच हायर, ऊंची जमीन पे बनी हुई है गया, और ये नीचे जमीन पे 55 मीटर्स पटना है सी लेवल 55 से meters. इसका हाइट। यानी पानी का जो लेवल है ना सी में, उससे 55 मीटर ऊपर आइएगा तो बिहार शरीफ का वही लेवल है, जबकि गया इज एट 111 meters. तो एल्टीट्यूड इज द हाइट फ्रॉम द सी लेवल। तो ही वाज क्रॉसिंग द सी ना, एक तरह से समंदर ही क्रॉस कर रहा था ना। इंग्लिश चैनल इज व्हाट, सी। तो पानी तो एक ही लेवल होता है, समंदर सारे सी लेवल एक ही है पूरे अर्थ अर्थ पे, ठीक है। तो ही वाज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 250 फीट, 250 फीट ऊपर थे वो हवाई जहाज में। सी जो पानी था उससे 250 फीट, दैट्स द एल्टीट्यूड। कितना अच्छा मौका देखा एल्टीट्यूड वर्ड घुसाने का, हाँ, सिखाने का। 40 miles per hour at an altitude of 250 feet, at a height of 250 feet, 250 फीट की ऊंचाई पे उड़ रहे थे। तो यहाँ पर एट की हिंदी क्या होगी, पर 100%। जब नहीं गलत वर्ड कोई सिखा दे तो उसको करेक्ट करना आसान है, पर सही है, लेकिन हर जगह नहीं होता ना, तोता कर बन के नहीं याद कर सकते। पिछले सेंटेंस में एट मतलब पर नहीं, पिछले पार्ट में पर नहीं था, के रफ्तार से यहाँ है पर, लेकिन दोनों में कॉमननेस बताते हैं। कॉमन क्या है दोनों में, दोनों रेट बता रहा है। at a height of 250 feet at a speed of 40 miles. Everything went well. Everything went well. सब ठीक से हुआ, कुछ कर परेशानी नहीं, everything went well. सब मस्ती एकदम according to the plan. Everything went well until he flew into fog. Until he flew into fog. मतलब समझ में आ गया? He flew into, ये into जो है फंक्शनल प्रीपोजिशन है। He flew into fog, ये कोई फिक्स नहीं है, समझने की वजह से, समझ की वजह से। देखो into ऐसे होता है मूवमेंट inside something. He came into the room. He came, हाँ, he came into the office. The plane flew into the fog. Into सब जगह एक जैसा फीलिंग दे रहा है ना। I put the money into the drawer. Okay, I put the money. हाँ, okay. तो हालांकि यहाँ इन बेहतर था, इनटू मूवमेंट बताता बेटा। गो इनटू, वॉक इनटू, स्विम इनटू, फ्लाई इनटू, मूवमेंट बताता है। ओके, एवरीथिंग वेल वेंट वेल अंटिल ही फ्लू इनटू फॉग। सब ठीक से हुआ, कब तक? इसके बाद बदलाव हुआ कब? जब फ्लॉग फॉग में गया ना, सब गड़बड़ा गया वहां से। एक आदमी कह रहा है, इतना बढ़िया मेरा जीवन चल रहा था, तुमसे मिलने से पहले आई हूं, तुम चौपट कर दी, सारा मेरा शांति मेरे जीवन का चला गया। My life was so peaceful until I married you. My life was so until I married you. और एक बॉय लड़की को फ्लर्ट करते हुए कहता, I didn't know what love was until I met you. I didn't know what love was until I met you. हमको तो पता ही नहीं था प्यार क्या होता है जब तक हम तुझसे नहीं मिले, मिलने के बाद पता चल गया। फिर थोड़े दिन बाद बोलेगा, I didn't know what धोखा was until I met you. हर दिन बसंत बाहर नहीं होता ना, पतझड़ भी आता है लाइफ में। तो रिलेशनशिप में भी अच्छे अच्छे दिन, बुरे बुरे दिन, ऐसे ही। ऑलराइट गाइस, अंटिल वाला सेंटेंस बनाओ।
I didn't know how tasty pizzas were until I went to Domino's one day in Patna. Before that, I ate pizzas in Bihar Sharif, but they were bad quality pizzas, and I didn't know why people were so crazy about them. But when I went to Domino's in Patna, then I realized, oh my goodness, pizza is heavenly, you know. हमको तो पता नहीं था इंग्लिश कितना इंटरेस्टिंग है यहाँ आने से पहले कैसे बोलेंगे I didn't know I how didn't interesting know. English was until I came here. Okay, okay. Everything went well until he flew into fog. I was very confident of my English knowledge until I joined this class. कोई student बोल रहा है तौहीद बोलेगा ये line. Yes. क्या बोलेगा? I was very confident of my English knowledge until I came here. Yes, sir. Yes, समीर. बैंड बजा दिया मैंने उस बच्चे का यहाँ पे नहीं खाली डांट रहा लेकिन अब धीरे धीरे देख रहे असर भी हो रहा है उस पर मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपके बेवकूफी को सपोर्ट करता रहूं फिर आप मुझे किसी दिन गालियां निकालोगे बड़े होने के बाद आप हमेशा ऐसे नहीं रहोगे ना आज जैसे हो आप हमेशा वैसे थोड़ी रहोगे ए टाइम विल कम व्हेन यू विल बिकम मैच्योर उस दिन आप मुझे जज करोगे सही से आज अगर मैंने आपका दिल दुखा दिया अपना काम करते हुए तो आपको बुरा लग रहा होगा बट व्हेन यू ग्रो अप ना देन यू विल रिमेम्बर कि ऐसी टीचर की जरूरत हर एक को होती है हमारी राय बदलती है लोगों के बारे में और चीजों के बारे में विद आवर एज जो अब बहुत अच्छा लग रहा होता है आज वो कल बुरा लगता है क्योंकि हमारी समझ बदल जाती है लगता है ये आदमी खाली हमारा फायदा ले रहा था अच्छा अच्छा बोल के और उस समय हमको अच्छा लग रहा था बाद में लगता है यार ये तो अच्छा नहीं था एंड somebody who's not very nice to you and you don't like them या इतना रूड है मेरे साथ बाद में you start liking that person कि वो मेरे लिए ही रूड था यार so I have seen that I have experienced it students change their opinions over time it depends on how you have been with them so now I do not care about your current opinion I will just do what I need to do because I know later you guys will appreciate what I'm doing for you maybe not now but later you will. Okay, everything went well until he flew into fog. And he says, I continued flying for 10 minutes. Even in the fog, he continued flying. When there is fog in the air like there, you can't see anything. You become blindsided totally. Fog feels like the sky. That's all. I continued flying. I continued. फिर से आ गया सब्जेक्ट B2 हम उड़ाते रहे I continue flew. हाँ I continued flying हम उड़ाते रहे फ्लाइंग में नहीं फ्लू करेंगे बात समझिए आपका वर्ब सब्जेक्ट के बाद होता है एक वर्ब एक सब्जेक्ट आई कंटिन्यूड हो गया मैंने आपको पढ़ाया था आई वांट टू गो आई वांटेड टू गो में कोई चेंज नहीं हुआ वांट में चेंज हुआ वैसे ही आई लाइक वॉचिंग टीवी आई लाइक्ड वॉचिंग टीवी आई एंजॉय movies I enjoyed movies I enjoy watching movies I enjoyed watching movies कोई चेंज नहीं खाली वर्ब में चेंज होता है जो सब्जेक्ट के बाद है वर्ब आ गया V2 में I continued क्या भाई flying for 10 minutes I continued flying for 10 minutes 10 मिनट तक कंटिन्यू किए उड़ाते रहे 10 मिनट तक but I couldn't see the land लेकिन जमीन तो दिखवे नहीं किया I couldn't see the land only the sky and the sea when he looked down he saw the sea when he looked up he saw the sky गंडोगोल life is over याद कर लो भगवान को ऐसे ही टाइम हो गया होगा उसके लिए imagine it was the most dangerous part of the flight it was the most
dangerous part of the flight. I wasn't worried about the machine. I wasn't worried about the machine. डर नहीं था मशीन में खराबी आ जाएगा ये वो। ऐसी हिंदी करें तो सही है ना? मशीन में खराबी आ जाएगा, मशीन ऊपर नीचे हो जाएगा, कुछ ये डर नहीं था। आई वॉजंट वरीड अबाउट द। लेकिन अगर हम बोले आई वॉज नेवर वरीड अबाउट माई डॉटर्स इंग्लिश, तो इसका क्या मतलब हुआ? आई एम वरीड अबाउट यू, मुझे तुम्हारा टेंशन लगा रहता है। आई एम वरीड about you. Suppose you have a very difficult job, you go out at night alone, then your mother is saying, I'm worried about you. You have a risky job and you go out at night, I'm worried about you. तुम्हारे बारे में हमको टेंशन होता है, चिंता होती है। हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं ना, I'm worried about you. उसने कहा I wasn't worried about the machine. मशीन का कोई टेंशन नहीं था हमको। मशीन का टेंशन मतलब मशीन में कुछ खराबी आ जाएगा ये वो। I wasn't worried about the machine. एडजेक्टिव इस सेंटेंस में वर्ब बता भाई। आई वाजंट वरीड अबाउट द मशीन। जल्दी 10-10 मिनट लोगे तो हम फिर Worried, बता sir, रहे हैं। worried, sir, वर्ब क्या है? worried. व्हाट इज द वर्ब? इतना देर लगाओगे, जल्दी से नहीं बोलना है तुम लोग को। व्हाट इज द वर्ब? व्हाट इज द वर्ब? बी वर्ब पढ़ा है तो क्या क्या उल्टा पुल्टा बोलते हो यार। बस बी वर्ब देखो तो बी वर्ब बोल दो यार, बस इतनी सी तो बात बताई है मैंने। तुम्हारा काम आसान करना चाहता हूँ, तुम लोग अपना काम मुश्किल करना चाहते हो। आई वॉजंट वरीड, बी वर्ब है सामने, नहीं दिखा वॉजंट? वॉजंट क्या है? बी वर्ब है ना नेगेटिव फॉर्म में। तो तौहीद तुमने वरीड बोला फिर से और गायब भी हो गए कैमरे पर से शर्मा करके। अब वरीड का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। यही चीज दिमाग में अच्छे से बैठा लो। वरीड इज एन एडजेक्टिव। मैंने जो पढ़ा है उसके हिसाब से तुम ये सब डिसाइड कर पाते हो। पढ़ा है ना? ईडी एडजेक्टिव। The news is worrying. We are getting a lot of worrying news. टेंशन देने वाला न्यूज, worrying news. ing एडजेक्टिव, ed एडजेक्टिव। तो हर बार तुम पढ़ोगे तो पीछे जो पढ़ाएगा उसको रिवाइज करो दिमाग में, नहीं तो फिर टाइम निकल जाएगा। यूनिट 9, 10, 11, 12 पहुंचोगे, कहोगे हमारा इंप्रूव नहीं हो रहा है। इसीलिए नहीं होता है क्योंकि तुमको जो पढ़ाएगा वो दिमाग में चलाते नहीं है। जो सोचेगा वो कहेगा हाँ बी वर्ब है, वरीड एडजेक्टिव है। जैसे आई वॉजंट हैप्पी, आई वॉजंट सैड, वैसे ही आई वॉजंट वरीड। तो फिर तुम समझ पाओगे सेंटेंस को, फिर उसके साथ आगे पीछे कुछ खेल पाओगे। तुम वरीड को वर्ब देखोगे तो फिर तुम क्या ही करोगे? डिड लगा देना फिर उसमें क्वेश्चन में। वरीड अगर वर्ब है तो डिड लगा लेना फिर क्वेश्चन बनाते समय। अगर हम पूछना चाहते हैं कि उसको किस चीज का टेंशन था, व्हाट वॉज ही वरीड अबाउट, व्हाट वॉज ही, सोचो। ही वॉज वरीड, वो आगे आ गया। ही वॉज वरीड अबाउट समथिंग, समथिंग आगे आगे। व्हाट वॉज ही वरीड अबाउट। तो तुम जब सही वर्ब को गौर करोगे तभी ना क्वेश्चन नेगेटिव कर पाओगे। फिर गलती की है घूम फिर करके, तौहीद वरीड को वर्ब बोल दिया। तुम्हारा दिमाग जब तक इन सब चीजों को 100% सही नहीं पकड़ेगा, ग्रो नहीं करोगे तुम, याद रखना। Yes, sir. He wasn't worried. Worried is an adjective. And time up. I'm gonna see you guys on Monday. आज बहुत दिन बाद एक क्लास गया है जिसमें ज्यादा डांट वाट नहीं पड़ी तुम लोग को। It's Saturday today ना? Thursday, sir. Thursday. Sir, thinking tomorrow will be a holiday. So it's only Thursday today. Yes, sir. Okay, Today no okay. class. Yeah. All right, good. Because I was so confused. अभी सैटरडे कुछ दिन पहले था, कल फिर सैटरडे आ रहा है। I was like, I woke up thinking that it's Friday today. No,
Actually, I thought it is Saturday today. I thought it is Saturday Saturday today. today. Yeah, and it is the last day of the week today. And I will teach and then I'll have a holiday tomorrow. And I was thinking, कितना जल्दी आ गया आज Saturday. कुछ दिन पहले Saturday था. I woke up thinking like this and I couldn't realize it's only Thursday today. Good, good, good. Read the rest of the text and do the exercises. All the exercises, guys. पीछे जो भी है, सबको दोहराओ. 3, 4, 5, 6 सब दोहराओ. पढ़ो खुद से. मेहनत करोगे, टाइम दोगे, we will be fine. And recording, sorry, link मत मांगना कल अगर बारिश नहीं होगी तो, because I just want to give focus to one group, okay? तो तौहीद, समीर, युवराज, बारिश नहीं हो तो क्लास में रहना, okay? Okay, Yes, sir. sir. Bye bye guys, see you tomorrow. Bye Bye. bye. Bye.